morning class. We have already done the revision of short answers and objective type questions like blanks, MCQs and blanks, MCQs and okay. Now we are going to do the revision of answer the following question and name the following. So in this you will get a clue about a statement stating some clues and you have to name them. It is already there in your textbook, and in the answer the following question we will be having question answers. So we are going to do the revision of these two questions for today, and I hope you have completed your book. If so, then it would be easier for you to learn along with me. So that's it. We will go into the revision part. Starting from name the following. First one, mahogany, rosewood and airboy. These three are found in evergreen forest. Second, babul and kekar. These both are found in thorn forest. So the answer is thorn forest. Teak, sal and shesham. These three are found in deciduous forest. So the answer is deciduous forest. Then fourth one, Sundari tree. Sundari tree is found in tidal forest. So the answer is tidal forest. Fifth, cheer, deodar, fir and pine. These four type of trees are found in mountain forest. Answer is mountain forest. The folk dance of Gujarat. The folk dance of Gujarat is Garba. So the answer is Garba. Folk dance of Gujarat, Garba. Seventh, the largest seaport of India. The largest seaport of India is Mumbai. Largest seaport of India. Answer Mumbai. So largest seaport of India, Mumbai. The God's own country. The God's own country is Kerala. The God's own country. Answer is Kerala. The longest beach of India. It is Marina Beach. The longest beach of India, Marina Beach. The longest beach of India, Marina. Kanha National Park. Kanha National Park is in Madhya Pradesh. Kanha National Park, Madhya Pradesh. Kanha National Park, Madhya Pradesh. Jagannath Temple. Jagannath Temple is in Odisha. So Jagannath Temple, Odisha. Jagannath Temple, Odisha. Silk sari. Silk sari of Tamil Nadu is famous. So silk sari, answer is Tamil Nadu. 13th, Lavani dance. Lavani dance of Maharashtra is famous. So Lavani dance, Maharashtra. Lavani dance, Maharashtra. That's it about name the following. We are coming to the end of the revision. Answer the following question. So the first one is list the physical division of India. So you have to mention all the divisions, all the physical divisions present in India. So India can be divided into following the physical divisions. मतलब जो नीचे नाम दिए उस divisions में इंडिया को हम divide कर सकते हैं. Northern mountains, northern plains, western desert, southern plateaus and coastal plains and the islands. So these are the 5 divisions into which India is divided physically. Second, what is the difference between Kanyakumari and Indira Point? So you have to mention the difference between Kanyakumari and the Indira Point if there is any. So Kanyakumari is the southernmost tip of India mainland, right? So Kanyakumari is the southernmost tip. मतलब एकदम साउथ में जहाँ पे इंडिया का मेन लैंड स्टॉप हो रहा है वो है कन्याकुमारी. And Indira Point in the Andaman and Nicobar Island is the southernmost tip of the country. So that is the southernmost tip of the Indian mainland. And Indira Point is in Andaman and Nicobar Islands, and that is the southernmost tip of our country. वो mainland है southernmost tip का और ये है southernmost tip of our country. So the difference between Kanyakumari and Indira Point is already stated. Now moving further to the next question.
What are the occupation of people of जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ पे आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग कौन से ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं. पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्न बाय मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम वुड पे से हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का काम करते हैं. सम पीपल ऑल्सो वेव सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, सिल्क और वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. सम मेक कारपेट्स एंड warm pashmini shawls. In summer people also work in the field. मतलब ज़्यादातर काम किस चीज़ का, हैंडीक्राफ्ट्स का चल रहा है, यानी सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स भी बनाते हैं और कारपेट्स हैं, शॉल्स भी जम्मू एंड कश्मीर की फेमस है. सब हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर की फेमस है. एंड इन ड्यूरिंग समर दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड्स. Fourth, what do you know about the people of Meghalaya? So they are mainly farmers who grow rice, jute, potatoes, sugarcane, pineapples and oranges. So the people of Meghalaya are mainly farmers. And what type of things they grow? They grow rice, jute, potatoes, sugarcanes, pineapples and oranges. Fifth, why are the northern plains fertile? So you have to mention the reason why these northern plains are fertile. Rivers that start from the Himalaya flow through northern plains. तो जो हिमालय से स्टार्ट होने वाली रिवर है वो फ्लो करती है नॉर्दर्न प्लेस से, और जब ये रिवर्स फ्लो करती है तो वो वाटर के साथ साथ बहुत सारे रॉक्स और जो रिवर बैंक पे चीज़ें होती है उसे भी कैरी करती है, और वो अपना जो वेट है वो रिवर बैंक्स पे शेयर करती है. मतलब उसके ऊपर जो भी रिवर में जो भी चीज़ें कैरी करती है वो रिवर बैंक्स पे डिपॉजिट करती है. तो लाइक दिस वे दे डिपॉजिट क्ले, जो एल्यूमिनियम, जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं नॉर्दर्न टॉप से, माउंटेन के टॉप वाली, वो भी वो रिवर बैंक पे छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जो रिवर बैंक्स की एरियाज़ हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, वो फर्टाइल हैं, जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एकदम आइडल होती हैं. जब सॉइल फर्टाइल होती हैं तो वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़फुल होती हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. So I will read this answer once again for you. So the rivers that starts from the Himalaya flows through northern plains. These rivers carry water and also a lot of rocks and slits. It shifts this weight along the river banks. This deposit of fine clays slit is known as alluvium. It is extremely fertile and ideal for growing crops. Describe the climate of Great Indian Desert. The climate is very hot and dry throughout the year. तो जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है? हॉट और ड्राई, पूरे साल में सूखा रहता है. रेनफॉल इज वेरी स्कैंडी विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. मतलब रेनफॉल बहुत कम है, ना के बराबर, जिसकी वजह से दे फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. समर सीजन मार्क्ड बाय हॉट डेज एंड कूल नाइट्स. समर सीजन में हॉट डेज होते हैं और नाइट्स कैसी होती हैं? कोल्ड. एंड ड्यूरिंग विंटर्स डेज आर वार्म बट नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड. विंटर सीजन में डेज पूरे वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, पर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडी रहती है. 7. Describe the vegetation of the desert region. How does the climate affect the vegetation of this region? तो यानी डेजर्ट रीजन में कैसी वेजिटेशन ग्रो होती हैं और कैसे क्लाइमेट उन वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, मतलब उनका चेंज, क्लाइमेट का चेंज वेजिटेशन पे कैसे शो होता है. सो देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, मतलब कोई ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो नहीं होती. ओनली थर्नी बुशेस, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस एंड केकर ग्रो हियर. तो ये कांटे वाले झाड़ियाँ होती हैं, वैसी झाड़ियाँ ही ज़्यादा आपको डेजर्ट पे दिखेंगी. एंड डेट प्लांट्स आर ग्रोन नियर द ओसेस एज द सॉइल हियर इज़ क्वाइट फर्टाइल. तो जो डेट प्लांट्स है, खजूर हैं, वो ज़्यादा ओसेस वाले एरिया में ग्रो होती हैं, क्योंकि वहाँ की सॉइल कैसी है? फर्टाइल है, विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और ओसेस का हमने देखा था, डेजर्ट का एक ऐसा एरिया जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर
वाटर सरफेस लेवल पे रीच आउट होता है। आपको याद होगा शायद, है ना। So there is hardly any vegetation, only thorny bushes, different varieties of cactus and caker grows here. Their date plants are grown near the oasis and the soil here is quite fertile. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर नोमैड्स, वाई इज़ देयर लाइफ डिफ़िकल्ट। तो नोमैड्स कौन होते हैं और उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट कैसे होती है। पीपल हु डू नॉट हैव परमानेंट होम्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड पेस्टर्स फॉर देयर एनिमल्स आर कॉल्ड नोमैड्स। तो ऐसे लोग जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, अपने रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, या फिर कोई पास्टर्स मतलब चारा ढूंढने के लिए अपने एनिमल्स। अब जैसे डेजर्ट एरिया में हमने बोला था हर कोई कैमल को पालता है, तो कैमल के लिए चारा ढूंढना हो, ऐसे लोग जो कहीं पे एक जगह नहीं रहते, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वो होते हैं नोमैड्स। और देयर लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमने देखा था डेजर्ट एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है बिकॉज देयर इज़ नो रेनफॉल और लेस रेनफॉल, सो देयर लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बंजारास। इन हिंदी हम उन्हें बंजारा भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में या रहने के चीज़ों के तलाश में घूमते रहते हैं, या तो फिर अपने कैमल के लिए चारा ढूंढते हैं, वो सब क्या होते हैं, नोमैड्स। नेक्स्ट, हाउ आर द ईस्टर्न घाट्स डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो हमने देखे थे दो पार्ट्स में घाट्स डिवाइड होती हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, और इस आंसर में आपको मेंशन करना है कि ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट से डिफरेंट कैसे हैं। So the eastern Ghats are irregular and cut by rivers that fall into the Bay of Bengal. तो यानी ईस्टर्न घाट्स कैसी हैं, एक ही स्ट्रेच में माउंटेन्स एक के बाद एक माउंटेन नहीं होता, वहाँ पे इरेग्युलरिटी है, यानी बीच में से रिवर फ्लो हो रही हैं जो बे ऑफ बंगाल में रीच आउट हो रही है। और वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, दूसरी तरफ एक कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ हिल्स हैं, छोटे छोटे हिल्स जो कंटिन्यूसली एक के बाद हिल है, बीच में कोई रिवर उन्हें कट नहीं कर रहा, वैसा होता है वेस्टर्न घाट। एंड इन ईस्टर्न घाट इरेग्युलरिटी है बिकॉज द रिवर्स कट दिस हिल्स इन द मिडल, दिस रिवर फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, वॉट डू यू नो अबाउट द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र। इस आंसर में आपको बताना है कि आपको महाराष्ट्र के सॉइल के बारे में क्या पता है। द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द लावा रॉक्स। लावा रॉक से बनती है सॉइल महाराष्ट्र की। ऐसे जब लावा फूटता है उसके रिमेनिंग से जो सॉइल होती है उस सॉइल से बनता है महाराष्ट्र की सॉइल। एंड दिस लावा सॉइल पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल। लावा सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। एंड इट इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लावा सॉइल्स आर आइडल। दैट इज़ द सॉइल ऑफ महाराष्ट्र इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। I will read out the answer again. The soil of Maharashtra is formed from the lava rocks. This lava soil popularly called black soil, which is ideal for growing cotton. Where do the western coastal plains lie? तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कहाँ पर है, किस साइड पे आती हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड इनटू। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो डैम्स आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो जो वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी के बीच में क्या आता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं, एक गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलबार कोस्ट। So the western coastal plain lies between the Western Ghat and the Arabian Sea, and this western coastal plain is divided into 3 parts, that is Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast.
So the next question is, why are dams called multi-purpose project? Dams को हम multi-purpose project क्यों बोलते हैं? Dams are called multi-purpose projects as they are also used to generate electricity. हम dams को electricity generate करने के लिए use कर सकते हैं. Dams controls the flow of water. River water के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज डैम्स. व्हेन अ रिवर इज फ्लडेड फिशेस आर ऑल्सो ब्रीड इन डैम्स. जब रिवर फ्लडेड होती हैं तो उनकी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज डैम्स, और फिशेस को भी हम ब्रीड कर सकते हैं इन dams. So dams are called multi-purpose project as they are also used to generate electricity. Dams can control the flow of water when a river is flooded, and fishes are also breed in dams. So these are the various ways in which we can use, and so these dams are called multi-purpose project. Next, what is tank irrigation? In the southern plateau, tanks and ponds are popular way of storing rainwater. So जो साउदर्न प्लेटू है वहाँ पे टैंक्स हो या पॉन्ड्स हो, इन सब वेज में हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं. वेल्स कैन नॉट बी डग हियर. वहाँ पे कुएं खोदना आसान नहीं है. बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेरी हार्ड. और कुआं खोदना क्यों मुश्किल है? बिकॉज जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, वो हार्ड है. The rainwater fills up low-lying areas. These are called tanks or ponds. This type of irrigation is called tank irrigation. तो यानी आप रेन वाटर को से क्या कर सकते हो? लो लाइंग एरियाज को फिल कर सकते हो, जो है टैंक्स और पॉन्ड्स. तो इस तरह से हम रेन वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए जब यूज़ करते हैं, दैट इज़ टैंक इरिगेशन इन साउदर्न प्लेटूज. Okay, suggest methods to save water. In this answer, you have to mention points suggesting how to save water. So ways to save water are: increase the forest area and planting trees can solve water crisis. तो फॉरेस्ट एरियाज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, जिससे हम वाटर क्राइसिस, पानी की कमी को सॉल्व कर सकते हैं. We should wash vegetables and fruits in a pan of water and use the water for watering plants. हम वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स को वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, उसे हम फिर से प्लांट्स को वाटर करने में यूज़ कर सकते हैं. We should water the garden in the evening and morning when evaporation is minimum. हम गार्डन को पानी कब दे सकते हैं? जब मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, जब इवेपोरेशन कम होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट मिनिमम होता है. लीकेज ऑफ टैप्स एंड पाइप शुड बी चेक्ड. हमारे घर में जो टैप्स है, पाइप्स हैं, उसमें अगर लीकेज है तो हमें उसे रिप्लेस करना चाहिए और बार बार चेक करना चाहिए कि कोई भी पाइप्स या टैप्स में लीकेज है या नहीं. सो दिस आर द वेज हाउ यू कैन सेव वाटर. Write short note on deciduous forest. Deciduous forests are popularly called monsoon forest. So deciduous forest को हम monsoon forest भी बोलते हैं. They are found at the foothills of Himalaya, Sahyadri and northern eastern part of Indian peninsula. Peninsula का हमने देखा था, triangular in shape and covered by water on all the three sides. Unlike the evergreen forest, the trees of this forest sheds leaf once a year. तो जो evergreen forest है उसमें हमने देखा था कि ट्रीज़ सीज़न के अलग अलग टाइम पे लीव्स को शेड्स करती हैं, उसके लीव्स फॉल होते हैं. पर जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसमें लीव्स वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार एक साथ ही leaves fall होते हैं. So this is the note about deciduous forest. What steps have the government taken to protect wildlife? So the government has started programs such as social forestry movements and Van Mahotsav to protect wildlife. तो गवर्नमेंट ने सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स हैं, वन महोत्सव स्टार्ट किया है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड गवर्नमेंट ने लोकल्स है, ट्राइबल पीपल को भी इन्वॉल्व किया है इन कंजर्विंग फॉरेस्ट.
Steps are also being taken to develop green belts in urban areas. अर्बन एरियाज़ में हर जगह ग्रीनरी हो, इसलिए ज़्यादा ट्री ग्रो हो, इसलिए ग्रीन बेल्ट्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है अर्बन एरियाज़ में. Why is the coconut tree called the tree of wealth? कोकोनट ट्री को हम ट्री ऑफ वेल्थ क्यों बोलते हैं? द कोकोनट ट्री को हम ट्री ऑफ वेल्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका हर पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं. जो ट्री कोकोनट के ऊपर से जो हम ब्राउन उसके हेयर जैसा निकालते हैं वो हम रोप्स रस्सी बनाने के लिए, कारपेट के लिए, मैट्रेसेस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो कोकोनट ट्रीज all parts are useful, so it is called tree of wealth. Why are camels important in desert region? Desert region पे camel क्यों important है? Camel is known as ship of desert and it is the most efficient mode of transportation. यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कैमल का यूज़ कर सकते हैं. कैमल्स के जो लेग हैं वो पैडेड होते हैं, जो वो उन्हें रेत जैसी सैंडी सॉइल पे चलने में, भागने में हेल्पफुल रहती हैं. एंड इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू एनी अदर एनिमल. सो कैमल इज़ कंसिडर्ड एज अ शिप ऑफ डेजर्ट and is important in the desert region. So that's it about the revision. Start learning and do well during exams. Thank you.